بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی نیم از حمزہ آصف۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی کہ ایک انسان کا سچ کیسے بن رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر چیز کنیکٹڈ ہے اور کانسٹنٹلی آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو کسی بھی چیز کا ٹروتھ صرف اس کے خود کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ارد گرد جتنی بھی باڈیز ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں ان سب پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے لاسٹ لیکچر میں۔ اگر تو آپ نے لاسٹ لیکچر مس کیا ہے تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ پہلے جا کے لاسٹ لیکچر سن لیں، کیونکہ یہ ایک سیریز آف لیکچر ہیں۔ اگر آپ ترتیب سے نہیں سنیں گے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو اس کا لنک میں نے سائٹ پہ شیئر کیا ہے، آپ اس کو جا کے پہلے دیکھ لیں۔ اینی وے، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک انسان کا سچ کیسے بن رہا ہے۔ کارل ینگ ایک بہت ہی مشہور سائیکالوجسٹ گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ خطرہ کسی اور سے نہیں ہے بلکہ خود سے ہے، کیونکہ ایک انسان خود کے کنٹرول میں ہے، اس کا مائنڈ اس کے خود کے کنٹرول میں ہے، اور اگر وہ خود کو صحیح طرح کنٹرول نہیں کرے گا تو اپنے بیہیویئر سے نہ صرف وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا بلکہ خود کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، اپنی زندگی سب سے زیادہ مشکل کرے گا۔ اس لیے ہمیں سائیکالوجی کو پڑھنا چاہیے، ایک انسان کے سچ کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ جتنا ہی ہم ایک انسان اپنے بارے میں جانیں گے، انسان کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہی ہم خود کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک انسان کا سچ کیا ہے۔ تو جب ہم نے ایک انسان کے سچ کے بارے میں بات کرنی ہے تو اوبویسلی ایک تو ہم ایک انسان کے احساسات، جذبات کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیوں آتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کو کیسے بہتر طریقے سے پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، ایک انسان کا بیہیویئر، وہ کیسے بنتا ہے، اس کو فردر کیسے ریفائن کیا جا سکتا ہے۔ پھر اوورآل ایک انسان کی پرسنالٹی کو ہم کیسے نکھار سکتے ہیں۔ پھر انسان کا مائنڈ، ایک انسان اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تو اوبویسلی ہم بات کریں گے۔ لیکن دوسرا، کوئی بھی انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہتا، انسان ہمیشہ گروپس کی شکل میں رہتے ہیں۔ تو جب بھی وہ گروپ کی شکل میں رہتے ہیں تو ڈفرینٹ سوشل سسٹمز ہیں جو اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نیٹ ورک آف ویلیوز کے گرد اس کی زندگی گھر جاتی ہے۔ مطلب سوسائٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں، کمیونٹی کی ہوتی ہیں، نیشن کی ہوتی ہیں، ریلیجیس ویلیوز ہو سکتی ہیں، اسی طرح ہی فیملی کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی انسان کا کوئی گروپ ہو، اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، تو انسان کو ان سب ویلیوز کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ فردر یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ ویلیوز کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ ہم جب لوگوں کو اس کے خلاف جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لیٹ دیم بی، لوگوں کو جج نہیں کرو۔ لیکن کچھ ویلیوز ہیں جن اگر ہم کسی کو ذرا سا بھی ان کے خلاف جاتا دیکھیں تو ہمارا رویہ بہت سخت ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری سخت بیہیویئر اور ہماری لینینسی یہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوتی ہے، کون سا پرنسپل کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر ہم نے آلریڈی بات کی لاسٹ ویڈیو میں کہ کس طرح رائٹ اینڈ رونگس کی ویلیو جو ہیں، وہ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں۔ رائٹ اینڈ رونگ ایسے ہے جیسے موشن میں ہے، چینج ہوتا رہتا ہے۔ وہ چینج کیسے ہوتا ہے؟ آج کی آپ ویلیوز کو اپنی سوسائٹی میں ہی، آج کی ویلیوز کو پچھلے 10-15 سال پرانی ویلیوز کے ساتھ کمپیئر کریں، آپ کو ان میں فرق نظر آئے گا۔ آپ اپنی سوسائٹی کی ویلیوز کسی دوسری سوسائٹی کے ساتھ کمپیئر کریں، آپ کو ان میں فرق نظر آئے گا۔ فار ایگزامپل، آپ ڈریسنگ سینس کو لے رہے ہیں، بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر سوسائٹی کی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینسز کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایک پرنسپل ہے جس کے اوپر اوبویسلی رائٹ اینڈ رونگ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں، کسی بھی سوسائٹی یا سسٹم کی جو ویلیوز ہیں وہ بیس کرتی ہوں گی، ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو جب ہم نے ایک انسان کے سچ کے بارے میں جاننا ہے تو صرف ہم نے ایک انسان کا سچ نہیں جاننا، بلکہ انسان کی زندگی میں یہ ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، سوشل سسٹم کی ویلیوز ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، ہم نے ان کے اصول کو بھی سمجھنا ہے۔ تو جس طرح میں نے بیان کیا کہ ہر چیز کا سچ جو ہے اس کے ارد گرد جتنی بھی باڈیز ہیں جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس طرح ہی ایک انسان کے اوپر بھی بہت سی فورسز انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک انسان کا سچ ان سب فورسز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے ایک انسان کے سچ کے بارے میں جاننا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کون سے ویریبل ہیں جس کے اوپر ایک انسان کا سچ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ ایک انسان کا سچ کیسے بن رہا ہے، آئے ہم پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ویریبل ہیں جن کے اوپر ایک انسان کا سچ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ تو آئیں بات کرتے ہیں ان ویریبلز کی، ان فورسز کی جو ایک انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور ایک انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے۔ چلیں اس کی سمجھ آئی کہ کس طرح ارتھ باقی پلینٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے اپنے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے، اور وہ سب ایک دوسرے کو متاثر کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن
एक इंसान, हम सब आपस में कैसे कनेक्टेड है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे ऊपर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मैं बिल्कुल यहाँ पर अकेला बैठा हुआ हूँ, कोई फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। मैं और आप मेरे से इतनी दूर बैठे हैं, हम कैसे कनेक्टेड हैं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं हम हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे से हज़ारों मील दूर भी अगर कोई चेंज होगी तो उसका इम्पैक्ट हम सब पर होगा, मुझ पर होगा, आप पर भी होगा। तो ये सब कैसे है, ये सब समझने के लिए हमें दोबारा फिजिक्स में जाना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स सेज दैट mass and energy are interchangeable, so consequently mass is merely a manifestation of energy. mass एनर्जी की मैनिफेस्टेशन कैसे है, मतलब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग वो एनर्जी की एक फॉर्म है, वो एनर्जी से ही बनी हुई है। तो ये कैसे है, तो मैस एनर्जी की मैनिफेस्टेशन कैसे है, किस तरह हर चीज़, बेजान चीज़, मिट्टी, पानी, हवा या जानदार चीज़, प्लांट्स, एनिमल्स और इवन इंसान, हर चीज़ एनर्जी से कैसे बने हुए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी हुई है। इंसान भी एटम से बने हुए हैं और लकड़ी भी एटम से बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है भी तो जिस एटम से इंसान बना है और जिस एटम से लकड़ी बनी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट जब एक एटम के अंदर देखते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखते हैं, वो देखते हैं कि एक एटम पहले तो 99.99% बिल्कुल एम्प्टी है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सब में 3 ही कॉमन एलिमेंट्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बस वो 3 पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में हैं और बस यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है एक एटम के अंदर। तो डिफरेंट चीज़ें कैसे बनती हैं, बस यही एटम जो है डिफरेंट तादाद में, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में जब मिलते हैं उसकी वजह से डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का एटम H2O जब मिलेंगे तो पानी बन जाएगा। इसी तरह ही जब किसी और अरेंजमेंट में और तादाद में ये लोग मिलेंगे तो लकड़ी बन जाएगी। इसी तरह बाकी सब चीज़ें, इवन के प्लांट्स, एनिमल्स और इंसान भी। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एक एटम के अंदर हम देखते हैं तो यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मोशन में है, एंड मोशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए कहते हैं कि मैथ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हर चीज़ जो है इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से बनी है। मतलब ये जो एनर्जी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब बनते हैं उससे डिफरेंट चीज़ें वजूद में आ जाती हैं, डिफरेंट सच बन जाते हैं। हम भी एक मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, और हम तो कॉन्शियस एंटिटी हैं। क्या इसका मतलब है कि हम भी सच बना सकते हैं? एनीवे, मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हम बात कर रहे थे कि किस तरह हर चीज़ कनेक्टेड है, कि किस तरह हम कनेक्टेड हैं, मैं और आप, हम किस तरह कनेक्टेड हैं। हमारे दरम्यान में तो इतना फासला है, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप प्रोबेबली लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में, तो हम सब कैसे कनेक्टेड? हम सब इस तरह कनेक्टेड हैं क्योंकि हम सब एटम से बने हुए हैं। कायनात की हर चीज़ एटम से बनी हुई है। हमें जो भी सेपरेट कर रहा है, मतलब अगर आप लाहौर में हैं या कराची में हैं या इस्लामाबाद में हैं, इवन इंडिया या बांग्लादेश में हैं या यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, हमारे दरमियान में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम की बनी हुई है। मैं एटम का बना हुआ हूँ, हवा एटम की बनी हुई है, हवा मेरी बॉडी के साथ मुसलसल इंटरेक्ट कर रही है। मेरी बॉडी एटम की है, हवा एटम की है, ये दीवारें एटम की हैं, यही हवा जाके आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, आप एटम के बने हुए हैं। तो कहीं पर भी कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, बस हवा है या डिफरेंट चीज़ें हैं और हर चीज़ एटम की बनी हुई है। तो इस तरह हम सब कनेक्टेड है, और कहीं पर कोई भी चेंज होगी उसका इम्पैक्ट हम सब पर होगा। इसको ज़रा सोचें। शेप्स जो आपको नज़र आ रही हैं, मेरी शेप नज़र आ रही है, दीवार नज़र आ रही है, आपको डिफरेंट शेप्स याद हैं, उन सब से बाहर निकलें। ज़रा सोचें कि किस तरह मैं एक मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी हूँ, मैं एक एनर्जी का मजमूआ हूँ, ये दीवार एनर्जी का मजमूआ है, हम सब एटम के बने हुए हैं, आप एटम के बने हुए हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स से बाहर निकलें और इमेजिन करने की कोशिश करें कि किस तरह हर चीज़ एक एनर्जी की फील्ड है, एक बहुत बड़ी, और उसके अंदर हम सब एक एनर्जी के डिफरेंट मजमूए हैं और मुसलसल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं।
इसको ऐसे समझें कि जैसे ये पूरी दुनिया हमारी एक बहुत बड़ी एक ही बॉडी का हिस्सा है, और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो सारे आपस में कनेक्टेड हैं और सारे मुसलसल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और इसी तरह ही हमारी ज़िंदगी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हमारे ऊपर दुनिया की हर चीज़ मुसलसल जो है हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही है और हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करती है। इसको 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 ज़रा समझें, और अगर आप समझ लेंगे फिर सोचें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा हैं, कि किस तरह हमारी ज़िंदगी एक दूसरे की वजह से मुतासर हो सकती है, कितनी डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। इस पर सोचें। हमने भी देखा कि किस तरह हर चीज़ कनेक्टेड है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल ज़रूर पूछें। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो एक इंसान के ऊपर इंटरेक्ट कर रही हैं और एक इंसान की ज़िंदगी को मुतासर करती हैं। देखिए, अपनी ज़िंदगी को मास्टर करने के लिए हमें उन सब फोर्सेस का जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है एक इंसान के ऊपर, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उन वेरिएबल्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। पहला तो एक इंसान का खुद का सच, इंडिविजुअल ट्रुथ। लेकिन हर इंसान के अपने वैल्यूज़ होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो उसको मास्टर करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ट्रुथ दैट कम्स इनटू बीइंग विद द कलेक्टिव इंटेंशनैलिटी ऑफ पीपल, मतलब इंसानों के आपस में कंसेंसस से डिफरेंट वैल्यूज़ वजूद में आती हैं। वो सच की इन सच की दूसरी किस्म है। उसके बारे में हम अभी बहुत डिटेल से बात करेंगे। तीसरा, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके बहुत से लाज हैं, उन पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम उस पर नहीं अमल करेंगे तो वो सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस दुनिया की हर चीज़ एनर्जी से बनी है, हम भी एनर्जी से बने हैं, ये पूरी दुनिया भी एनर्जी से बनी है। लेकिन जो दुनिया है एक बहुत बड़ा एनर्जी का मजमूआ है, और हम उसके मुकाबले में बहुत महदूद सी एनर्जी हैं। तो अगर हम उसके साथ फाइट करेंगे और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। हमें उसके साथ ही चलना है, मौसमों का बदलना है, दिन का आना जाना है, और हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, हमें पानी की ज़रूरत है। तो तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पानी नहीं पीना आज के बाद, मैंने पानी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। ये मेरी ज़रूरत है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। नेचर ने मुझे ऐसा बनाया है और कुछ चीज़ों के साथ हम फाइट नहीं कर सकते। तो ये इस सच की तीसरी किस्म है। तो ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं जाने से पहले एक आखिरी बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो मैंने बताया कि पहली किस्म इंडिविजुअल ट्रूथ और दूसरा ट्रूथ दैट कम्स इनटू बीइंग बाय द कलेक्टिव इंटेंशनैलिटी ऑफ पीपल। तो मैं वो बस सरसरी सा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फर्दर हम इस पर बात करते रहा करेंगे। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि रियलिटी दो तरह की होती है, एक फिज़िकल रियलिटी और एक सोशल रियलिटी। फिज़िकल रियलिटी वो जो हमें नज़र आ रही है, जिसकी एग्जिस्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। मतलब ये दीवार हमें नज़र आ रही है, पहाड़ नज़र आते हैं, तो इसी जैसे ये सब चीज़ें हम इनकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, इनकी फिज़िकल रियलिटी है। तो दूसरी वो कहते हैं सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी दो तरह की होती है। पहली सोशल रियलिटी वो होती है जो एक इंसान के नेचर के साथ इंटरेक्शन से बनती है। फॉर एग्जांपल, फिलोसफर एक सवाल पूछते हैं कि दूर जंगल में हवा चली, बहुत तेज़ आंधी आई और उसकी वजह से दरख्त गिर गया, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो क्या उस दरख्त के गिरने से कोई आवाज़ आई? तो नॉर्मली हम समझेंगे कि जी बिल्कुल आवाज़ आई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं होगी। लेकिन फिलोसफर आपको बताएंगे कि नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। क्यों? क्योंकि बेशक दरख्त के गिरने से एयर में वाइब्रेशन ज़रूर पैदा होती हैं, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। आवाज़ एक्चुअली पैदा करने के लिए एक स्पेशल टूल चाहिए होता है जो उन वाइब्रेशंस को आवाज़ में कन्वर्ट करता है। तो जब तक वो टूल वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, वो वाइब्रेशन ही रहेंगी, वो आवाज़ में कन्वर्ट ही नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ पर कोई ऐसा टूल मौजूद नहीं है तो वो कभी भी आवाज़ नहीं बनेगा। तो वो टूल क्या है? वो टूल फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कान है। तो जब भी कोई वो वाइब्रेशन, हवा चली और दरख्त गिरा, और अगर हम वहाँ पर कोई इंसान मौजूद होगा, कोई ऐसा टूल मौजूद होगा जो उन वाइब्रेशंस को फर्दर आवाज़ में कन्वर्ट कर सके, तो ही सिर्फ आवाज़ बनेगी, अदरवाइज़ आवाज़ नहीं बनेगी। तो ये एक सोशल रियलिटी की पहली किस्म है जिसमें एक इंसान अपनी नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बोलते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो एयर में वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं।
तो ये वाइब्रेशंस एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं, ये आपके कान तक जा रही हैं और आपका कान इसको फर्दर आगे आवाज़ में कन्वर्ट करेगा। तो आपने अपने कान के थ्रू एयर के साथ इंटरेक्ट किया और एयर की वाइब्रेशंस को आवाज़ में कन्वर्ट किया। तो ये पहली टाइप है सोशल रियलिटी की, जिसमें एक इंसान नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और कोई सच बनाता है। इंसान हर वक्त नेचर के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, हम बाद में इस पर बात करते रहा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, एयर हर वक्त इंसान के साथ इंटरेक्ट करती रहती है, तो और उसकी वजह से इंसान की स्किन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मेरी स्किन भी बेहतर रहेगी, लेकिन अगर मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर आबोहवा बहुत बुरी है तो उसकी वजह से मेरी स्किन भी डैमेज होगी। तो एनीवे इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, हम इस पर फर्दर आगे बात करते रहेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सोशल रियलिटी है। अब हम बात करेंगे कि सेकंड टाइप ऑफ सोशल रियलिटी क्या है। अब हम सोशल रियलिटी की दूसरी किस्म के बारे में बात करते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ सोशल रियलिटी इज़ अ रियलिटी दैट कम्स इनटू बीइंग बाय द कलेक्टिव इंटेंशनैलिटी ऑफ टू और मोर पीपल। हमने अभी बात की कि किस तरह वाइब्रेशंस इंसान तक ट्रैवल करती हैं और फिर इंसान का कान उसे आवाज़ में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कोई भी आवाज़ को भी हमने कोई मतलब तो कोई मीनिंग नहीं दिया था। इंसानों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे बनाई? इंसानों ने अपनी लैंग्वेजेस में डिफरेंट आवाज़ों को कुछ स्पेसिफिक मीनिंग किस तरह दिए? आपस में म्यूचुअली एग्री करके दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई, उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया कि हम ये जो फल है सेब, इसको हम एप्पल की आवाज़ के साथ पहचानेंगे। तो अगर वो चाहते तो किसी और आवाज़ के साथ भी पहचान सकते थे। तो सेकंड टाइप ऑफ सोशल रियलिटी वो है जो इंसान म्यूचुअली एग्री करके एक रियलिटी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इससे बहुत सी किस्म की हम रियलिटी बनाते हैं। हर कंट्री की एक करेंसी होती है। करेंसी क्या है? एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उसको हमने वैल्यू दी हुई है। हम एक कौम ने म्यूचुअली एग्री किया है कि हम इसको ये वैल्यू देते हैं और फिर वो एक रियलिटी बन जाता है। इस तरह ही हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारी ज़िंदगी में। सोशल वैल्यूज़ होती हैं, कम्युनिटी की वैल्यूज़ होती हैं। वो किस तरह बनती हैं? हम सब म्यूचुअली एग्री करते हैं, उस कम्युनिटी के लोग या उस सोसाइटी के लोग, और वो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस तरह ही फैमिली की वैल्यूज़ भी होती हैं। हर घर की एक अपनी ही वैल्यूज़ होती हैं। इवन के दोस्तों का ग्रुप हो, उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उनके अपने जोक्स होते हैं जो उनके लिए तो बहुत ही शायद मज़ाहिया हों, उनके लिए बहुत ही मीनिंगफुल हों, लेकिन किसी और के लिए वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस होते हैं। तो ये रियलिटी ऐसी है जो इंसानों के म्यूचुअल कंसेंसस से बनती है। सेकंड टाइप ऑफ सोशल रियलिटी भी हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर मौजूद है। इससे बहुत से हमें फ़ायदे भी हैं और ऑब्वियसली कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे कुछ लोगों के साथ जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके साथ ज़्यादती की जाती है। कास्ट में कहा जाता है, ऐसी कोई कास्ट रखी जाती है जिसमें नेचर ने तो कोई फ़र्क नहीं किया होता, लेकिन हम म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं कि ये कास्ट जो है वो ये कास्ट आला है और ये कास्ट जो है वो निचले दर्जे की है। जिस तरह ब्लैक लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई, नेचर ने तो कोई फ़र्क नहीं किया था। ये इंसानों ने ही उस टाइम के इंसानों ने म्यूचुअली एग्री किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे। जितनी मर्ज़ी इग्नोरेंट हो, लेकिन जब एक इंसान एग्री कर जाते हैं किसी चीज़ पर तो वो एक रियलिटी बन जाती है और इसका सच के साथ एज़ इन कुछ लेना-देना नहीं होता। जितनी ज़्यादा इंसान एक साइड पर मौजूद हो जाते हैं, वो साइड उतनी ही फ़ोर्सफुल हो जाती है, बेशक वो सच के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। एनीवे ये 2 तरह की सोशल रियलिटी थी जो मैंने आपको बता दी हैं। एक वो रियलिटी है जो एक इंसान नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी वजह से सच बनता है, और दूसरा 2 या 2 से ज़्यादा इंसान म्यूचुअली एग्री करके जो रियलिटी बनाते हैं, वो दूसरी किस्म है सोशल रियलिटी की। मैं दोबारा रीआइट्रेट कर दूँ जो आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, कि एक इंसान का सच तो 3 फोर्सेस पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो उसका खुद का सच, उसके खुद की फीलिंग्स, एहसासात, उसके माइंडसेट। दूसरा वो रियलिटी जो कलेक्टिव इंटेंशनैलिटी से बनती है, जिसके बारे में अभी हमने दोबारा बात की। और तीसरा, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी भी बहुत सी वैल्यूज़ हैं और उन पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह फर्दर आगे अभी डिटेल से इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंसान की इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या हैं, वो सच कैसे वजूद में आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।